हे गाइस वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद ब्रोज। और आज का मैच भी वन साइडेड ही रहा। हम काफी मुकाबला वन साइडेड देख रहे हैं। तो हमारे साथ सौरभ सर जुड़े, ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो सबसे पहले तो स्वागत है सौरभ सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया. Thank you, Aniket. It's lovely to be back to your channel. And congratulations, your channel is doing lovely. थैंक यू सर, तो आप ही लोग का आशीर्वाद है ये सब। तो सर मैं बस जानना चाहूंगा सर, आज के मैच के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप ये केकेआर टॉस जीतकर बल्लेबाजी की, बट शुरुआत फिर से वैसा ही रहा। वेंकी अय्यर के परफॉर्मेंस में मैं जानना चाहूंगा, एज आप केकेआर फैन हो तो रिटेन प्लेयर वरुण चक्रवर्ती और केकेआर वेंकी अय्यर को बाहर रखा जाता है, फिर स्टिल इसके बाद हमने परफॉर्मेंस भी देखा, डिप डिप हुआ। बट आप कोलकाता आज के मैच को छोड़कर अभी तक का परफॉर्मेंस को क्या कहना चाहोगे सौरभ सर? कोलकाता का तो परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहा है from after the I think the first 3-4 matches. So and one of the main reasons has been that their batting has not been consistent and their starting has never been good. Other than जो पिछले वाला मैच था, I think it was with Mumbai Indians, right? The last match. So that match, I think, was the first time the team scored a 50-run partnership in the first wicket. So their batting has been a big issue. Venkatesh Iyer form has been a bit dicey, and this can happen. Means you have to understand that it is not that Venkatesh Iyer is. He had just played half of last year's IPL. People did not know him, did not know his strength and weakness. Now people know from where they can bowl to him. So it has been a challenge for him. And I think KKR is also a bit confused. Is he a opener? Is he a lower order finisher? So his role has also been not been defined, and it has actually not helped that the partner that he has, that partner is also not been stable. So last time he had Subman Gill, who was there for all the matches. So that has also been a difficult thing for them. So overall, I think KKR suddenly they look to be doing good over the last 2-3 matches. So it's good for the tournament in one sense because it still keeps six teams interested to go to the top four. But the disappointing part of IPL has been that there has been no close matches. It is too one-sided. So for people who are not supporters of KKR or SRH, must have gone to sleep by now. एग्जैक्टली सर, आपने सही कहा कि अगर जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, अगर आप उस टीम के फैन नहीं हो तो आपको तो नींद आएगी ही आएगी। आज का मैच भी उसी तरह था। बट व्हाट्स रॉन्ग विद एसआरएच? विकआउट उनकी शुरुआत काफी अच्छा हुआ था, अपने वो आरसीबी को 68 पर आउट किया। फिर उनके साथ क्या हुआ सर, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आज तो टी नटराजन और सुंदर भी खेल रहे थे। इंजरी के बाद आए, इंजरी के बाद आना इजी नहीं होता। फिर भी मैं जानना चाहूंगा सर कि क्या प्रॉब्लम हुई है एसआरएच के साथ? Uska to actually the bowling was very good. That is what was helping them to win matches earlier. आज के दिन में भी उमरान मलिक got the wickets that they needed. Bhuvneshwar Kumar was good. But then today, I think the spinning department, naturally, I think overall Sunrisers has a problem with the spinners. They do not really have a very good spinner. So they are dependent on Washington Sundar or they sometimes try Markram. Today, I'm a little surprised they did not bring in Markham somewhere in between. So they were forced to use Washington Sundar at the end. I think that last over made a lot of difference because there is a huge momentum shift that happened with Andre Russell. But if we look at, let's be very fair. When we discussed right after auction, we knew that Sunrisers Hyderabad doesn't have a team which is going to win the IPL. In between, their bowlers perform very आप well. लोग सौरभ सौम्या सर से क्वेश्चन कंटिन्यू रखना। मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ। वैशाली भी आई है। वैशाली सर से आप कंटिन्यू रखना क्वेश्चन, मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब हो रहा है। प्लीज आप होस्ट कर लो आज शो, मैं आ रहा हूँ बस एक मिनट। Hello everyone. So I joined just now. I hope आपको कैसे लगा आज का मैच? Like, how did you feel about the performance? I think it was a very one-sided match. So, uh, as a cricket lover who is not a supporter of RCB, SRH, or KKR,
would have gone to sleep today. Only RCB fans are interested that KKR जीतेगा तो उनका chances open रहेगा. So that was an important thing for them. For the KKR people, yeah, they will be there. But the rest of the teams, I think, Chennai अगर हम तो सब लोग सोने के लिए चला गया होगा. So it's too one-sided. I think that's the problem throughout all the matches in IPL this year. That's right. And what do you think about Ken Williamson's performance so far and his approach, the way he's batting for SRH this year? Yeah, I think the biggest funny part is that they left David Warner and he went for 6 crores to Delhi. And here you have retained someone, made him the captain, and he's basically struggling. But David Warner missed it. I think he was dropped. His captaincy was taken away. Lots of things had happened in Sunrisers. The same thing is not happening with Kane Williamson. So ideally, that should have been done as well because, see, I think if you look at Punjab Kings, one of the big difference has been that Mayank Agarwal, being the captain, sacrificed his opening place to allow Johnny Bairstow to open the innings. And here, Kane Williamson is sticking to that opening spot, whereas they can allow Markram or Rahul Tripathi to open with Abhishek. I think that could be a game changer. I hope Sunrisers does that in the next match. They try with Markram or with Rahul Tripathi to open with Abhishek. They can drop Ken Williamson or ask him to come down to 4 or 5. I absolutely agree with this point, and I have been saying this since the first match of SRH that Kane Williamson should wait at number three and not should not open it because we have seen Rahul Tripathi what he's capable of. Because nowadays, what is happening? The way Kane is starting the innings, he's playing at a strike rate of less than 50, and when Rahul Tripathi comes, the required rate will go up to 12 or so. So he has no choice but to go for the shots from the first ball. So that's the heat which he is facing. So I feel कि Kane Williamson should come at number three. अभी भी SRH के पास they have two chances if they want to qualify. This was the best chance for SRH. उनके पास अभी भी किस्मत हाथ में थी तीनों मैच जीतते they would have gone for top four and the way Ken is performing I think SRH की आज यूनिट ने बॉलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बैटर्स ने उनको लेट डाउन किया स्पेशली केन विलियमसन. The Kane Williamson we know we are not able to see him in this tournament so far. And how do you reckon the performance of Kolkata Knight Riders in this particular match? Yeah, other than the top order batting, I think their performance has been pretty good. Bowling has been superb. I think if you look at the overall tournament, KKR is almost dependent on a few players to perform. So that's sad, but that's the truth. So it is Andre Russell, Sunil Narayan, sometimes the captain Shreyas Iyer. So this is how the team has performed. So I think Andre Russell is having the best tournament for KKR after a long time because this is the maximum wickets he has ever taken in an IPL in a single year. So I think he has been the only reason why KKR has won a few matches, other than Pat Cummins, who won that great one match against MI. And So it's a more of an individualistic thing that is happening with KKR. They do not have a very good team, which they actually messed it up at the auction. So nothing surprising. It's good for the IPL that KKR won. So a few other teams can actually hope to go to the playoffs. But you never know with KKR. Last year also they somehow scraped in and went to the finals. So you never know. Another couple of good performances, you might see them again. Means frankly, I did not book the Calcutta tickets yet. Means thinking that if means I'm already there in the book my so that that eliminator. mean जाएगा तो eliminator में ही जाएगा वो. So I was yeah. almost booking. Then I thought नहीं. My wife came in the evening. नहीं book कर लो. कोई भी मैच देखेंगे. हम लोग कोई भी मैच नहीं देखेंगे. कोलकाता का मैच होगा तो देखेंगे. So probably अभी chances दिख रहा है. I might end up booking them. But I feel even though Kolkata win the next match 14 points से उनके NRR से it would be difficult for them क्योंकि बाकी टीमों का NRR उनसे अच्छा है and they might just go through. So KKR अगर जीतता भी है they won't find it very easy to breach into the top four. Correct, correct. That's true. There are some comments we'll just read it through. Okay, okay, okay.
Karvoli Larvo Jitwo is back on track. Yes, man. सो आप वैशाली आज आपको कैसा लगा आज मैच? आज भी बोरिंग, वन साइडेड। देखिए, मुझे ऐसा लगा जब तक एसआरएच ने बॉलिंग करी, आई फेल्ट कि उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उमरान मलिक, द वे ही हैज कम बैक, पिछले कुछ मैचों से उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन लास्ट इस मैच में उन्होंने दिखाया कि ही इज जस्ट नॉट the pace only is not the factor with him. He can take wickets on the good balls. श्रेयस अय्यर को जिस तरीके से आउट किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया, लेकिन उसके बाद बैटर्स ने उनको लेट डाउन किया। स्पेशली आई थिंक Kane Williamson, he himself has to blame for this loss because the way he's facing his innings, it's not going anywhere. राहुल त्रिपाठी के ऊपर unnecessary pressure, I must say, because the way he's starting the inning, Kane Williamson. तो वन साइडेड था, लेकिन कहीं मुझे उम्मीद थी जब तक मार्करम और पूरन भी थे कि हाँ ये मैच जा सकता है। लेकिन उनके आउट होने के बाद इट वाज जस्ट इट फेल्ट लाइक कि अब कहीं से भी एसआरएच इस मैच में नहीं आ सकती। और तारीफ करनी होगी जिस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती ने भी कम बैक किया इस मैच में, टाइट बॉलिंग डाली। अगर 2 ओवर पहले आप देखेंगे तो सुनील नारायण के भी 2 ओवर में 27 रन अराउंड थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने टाइट लाइन से लेंथ रखी और फिर अच्छा उन्होंने स्पेल डाला, जिसकी वजह से एसआरएच पे और प्रेशर आया और फिर वो कहीं भी जा ही नहीं पाए। तो मुझे लगता है केन विलियमसन ने ही लेट डाउन किया है एसआरएच को इस बार। द वे 200 रन कुछ बनाए उन्होंने विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 98, which will not help. So very disappointed with the way Kane is performing, and I'm not sure how he's gonna go about it. But I feel कि ये मैच के क्या अगर एसआरएच जीतता तो उनकी किस्मत उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने खुद से अपनी किस्मत जाने दी, मुझे ऐसा लगता है। और अंकित शर्मा का कहना है कि वॉशिंगटन सुंदर नॉट यूटिलाइज्ड वेल, टैक्टिकल मिस्टेक इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय पावर प्ले एग्जैक्टली एंड ही बीइंग यूज्ड फॉर द लास्ट ओवर। ये मेरे को भी ये प्रॉब्लम दिखा मेरे को। सौरभ सर, आपको क्या कहना है केन विलियमसन के फॉर्म को लेकर? क्योंकि हमारे मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन तीनों का फॉर्म जिस तरह हमने देखा है पिछले पास्ट में, टच में तो दिख रहे हैं रोहित शर्मा, बट उनका भी इनिंग काफी बड़ा नहीं हो पा रहा। विराट कोहली भी स्टार्ट अच्छा कर रहे हैं, बट केन विलियमसन से स्टार्ट भी अच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ही इज ऑल्सो बीस्ट, हम जानते हैं। तो सौरभ सर, आपको क्या लगता है केन विलियमसन की प्रॉब्लम क्या है इस बार हुई है? Nothing. It's just that he's struggling. You have to understand. Everybody goes through those phases. So New Zealand will go to England, and you will find Ken Williamson hitting a century in the Test cricket. So it's just that at the moment उनका रोल इस टीम में है एंकरिंग करना, बिकॉज ओवरऑल इफ यू लुक एट द टीम दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ पेडिग्री ऑफ बैट्समैन, सो प्रोबेबली द डिस्कशन इज दैट ही हैज टू प्ले फॉर 14-15 ओवर्स। और जब केन विलियमसन 14-15 ओवर्स खेलता है, आफ्टर 8-9 ओवर्स ही विल स्टार्ट गेटिंग हिज रेट बेटर, but unfortunately he is getting out. This is the same thing that Virat Kohli also does, that he picks up the scoring but he is also missing out. So it is just that अगर स्टीवन स्मिथ और जो रूट भी आईपीएल खेलता है इस बार, वो लोग भी हम लोगों को दुबाता है जो टीम में रहता है। सो ये साल ही ऐसा है, यही सोच लेना पड़ेगा शायद। हाँ, ईशान के पास क्वेश्चन है, तो पूछो ईशान आप। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे केन विल्सन जैसे ओपन करते हैं तो वो तीसरे नंबर पे भी आ सकते हैं, खेल सकते हैं जैसे पहले खेलते थे पिछले सीजन में जैसे खेला था उन्होंने। डेफिनेटली, मतलब ओपनिंग वाला स्लॉट तो राहुल त्रिपाठी जिस तरह का फॉर्म में है, यू शुड अलाउ राहुल त्रिपाठी टू ओपन। Agar means if I am part of the SRH management, Ken Williamson is there because of the name and the captain. So you pull him down to 4 or number 5, like Mayank Agarwal. So you allow you allow Markram to come in at number 3, and then Puran at number 4, and then Ken Williamson at number 5. Between Puran and Ken Williamson, you can change over depending on how the situation is. But initial level में जिस तरह से अभिषेक शर्मा फॉर्म में है, if you allow Rahul Tripathi also playing for 3-4 overs, then the other team will be demoralized. Even if KKR ka, if you think that Rahul Tripathi and Abhishek Sharma dono agar दो तरफ से मारता, then what would have been the situation of KKR? They would have drooped the shoulders, and then automatically some more mistakes would have happened. Already there were fielding mistakes, there were a couple of catches also, 50-50 catches dropped. So it is a little bit change that they need to do. I don't know
who is their next opponent, SRH ka. But I think this is something they need to do. They need to push Kane Williamson to number 4 or number 5. एग्जैक्टली सर। तो सर कल और मैं वैशाली कल डबल हेडर है, तो पहला मुकाबला इससे तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट हाई स्कोरिंग होना चाहिए। मैं ये चाहूँगा सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। तो वैशाली कल के पहले मैच को आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? देखिए अगर हम फॉर्म और उस पे जाए तो क्लियरली एवरीवन कैन से कि गुजरात जीतेगी, बट हम कल देख सकते हैं गुजरात में ट्राई डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कि उनके जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको टेस्ट कर सकती है गुजरात। बट आई फील वो भी कल कल शायद ना करे, बिकॉज दे वुड वांट टू इंश्योर कि वो टॉप 2 में फिनिश करे, तो कल का मैच जीतना चाहे। मुझे लगता है गुजरात जीत सकती है कल का मैच, द वे दे आर गोइंग दे डोंट वांट टू लूज मोमेंटम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो गुजरात से मुझे लग रहा है कि वो जीतेंगे इस मैच। सौरभ सर आपकी? I will go with CSK. Only reason is थोड़ा underdogs को support करते हैं. So right now CSK being the underdog, and let this tournament go till the end, right? You do not know who will be in the top 2, who will be in the top 4, और वो करने के लिए नीचे वाले टीम लोगों को थोड़ा जीतना है. And this CSK did, even in the Dubai, when tournament was held in Dubai, they actually ended up winning a few matches at the end, और उसके लिए KKR नहीं जा पाया था. I remember that. So CSK are going to do that once again, and this time MIA is also going to do it. I am very sure Rohit Sharma one big innings is waiting. Rohit Sharma और ईशान किशन का, वो किसके ऊपर पड़ने वाला है पता नहीं, कोई एक मैच में तो पड़ने वाला है. वो आखिरी मैच में आएगा सर, जिस तरह पिछले बार एसआरएच के अगेंस्ट आया था जो। हाँ, तो मेरे इस को बार लगा एमआई का किसके साथ लास्ट मैच है? मैं बताता हूँ आपको। एक तो हैदराबाद के साथ ही है मैच, एमआई वर्सेस हैदराबाद इस वन में। बस फिर गया, फिर हैदराबाद तो गया। 17 तारीख को है एमआई और हैदराबाद, और हम्म, दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। मैं तो चाहूंगा दिल्ली को हरा दे हाँ बस हो एमआई। गया, फिर केकेआर का चांस खुल गया, मैं टिकट खरीदता हूँ. अच्छा, और सौरभ यदुवंशी आपकी कौन कौन सी टीम है? और यशान आप ये बताना। कल का प्रेडिक्शन, कल कल हाँ, सीएसके हार रही है तो जीतेगी कल मैच। ओके ईशान। मैं तो अनिकेत भैया गुजरात के साथ हूँ कल तो। ओके, तो दूसरे मुकाबले पे भी आते हैं, जो दूसरा मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट है इस आईपीएल के लिए। कल अगर लखनऊ जीत जाती है तो वो भी मतलब अब क्यों लग सकता है उनके ऊपर, और राजस्थान के लिए भी अगर जीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैशाली कल का दूसरा मुकाबला तो ट्रेंट बोल्ट का वो फिर से वो बॉल आने वाला है केएल राहुल को, या फिर कल केएल राहुल बदला लेने के लिए तैयार है? अब बताओ थोड़ा। देखिए कल का मैच लखनऊ और राजस्थान का जो मैच है, मुझे लगेगा कि इस टूर्नामेंट का बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और केएल राहुल डेफिनेटली बदला लेने का सोचेंगे, स्पेशली जो उन्होंने लास्ट मैच में जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है पूरी टीम का 82 ऑल आउट। तो लगता है कि सब लाइक दे विल कम बैक विथ अ माइंडसेट कि हमें इस मैच में बाउंस बैक करना है, बिकॉज आप ऐसी टीम नहीं हो कि आप 82 पे ऑल आउट हो जाओ। ट्रेंट बोल्ट डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे अराउंड द स्टंप्स एंड दैट बॉल टू केएल राहुल जिससे वो आउट हो। बट इसी के साथ कल हेटमायर की वापसी है राजस्थान में, ही इज बैक। तो वापस ये टीम कॉम्बिनेशन है वो फिर से पुख्ता होने वाला है। तो कल एक टफ कंपटीशन होगा, और अभी मुझे दोनों के 50-50% चांस लग रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट एबल टू प्रिडिक्ट हु इज गोना विन दिस, बट आई फील कि कल एक क्रैकर कॉन्टेस्ट होना चाहिए, लास्ट बॉल थ्रिलर, और अगर सुपर ओवर देखने मिल जाए तो मजा ही आ जाए, which is possible. Tomorrow we might see a super over. तो कल का मैच राजस्थान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वो यहाँ से लूज करती है तो शायद हम ऐसा भी हो कि राजस्थान बाहर हो जाए, मतलब वो टॉप 4 में भी नहीं जा पाए, जिसको हम पहले से राजस्थान को इतना इम्पोर्टेंट कंटेस्टेंट मान रहे थे कि वो तो टॉप 4 में जाएगी। तो राजस्थान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, और लखनऊ के लिए इसलिए कि इस पॉइंट पे आकर वो मोमेंटम नहीं लूज करेगी कि 82 के ऑल आउट उसके बाद फिर आप वही कर रहे हो। तो एक क्रेकर ऑफ द कॉन्टेस्ट, पर थोड़ा सा ऐसा मन बोल रहा है कि शायद कल राजस्थान जीते। सौरभ सर आपको क्या लगता है, क्योंकि गौतम गंभीर सर ने काफी अच्छा उसके बाद आपने वीडियो भी देखा होगा, काफी ज्यादा वायरल वायरल भी हुआ था, मोटिवेट किया उन्होंने। हम तो by default I'm going to support Lucknow because Lucknow needs to win to put Rajasthan out of the tournament. So
राजस्थान को अगर ऑफ करना है तो लखनऊ को जीतना पड़ेगा. But I am a big fan of Gautam Gambhir. So, anyways, this year my second team is anyways Lucknow. So I hope Lucknow will win. Their last match was a little disappointing. So I hope this time we get a cracker of a contest. I agree with Vaisali. We need some close contest. So hopefully we get that super over, because I think IPL needs that kick, because we are not getting those close matches. If you remember, Rajasthan versus KKR match both acha tha. It was very close match which KKR lost. So those kind of matches we need. So let's see. I think it will be Lucknow. ओके, सौरभ और ईशान आप अपना बता दो. आरआर हैज 2 गेम, डोंट वरी. मैं तो कल अनिकेत भैया कल राजस्थान को कल सपोर्ट करता हूँ मैं उस शाम वाले मैच में. ओके, यूजी सौरभ को आपके देखना चाहूंगा मैं बॉलिंग कल. यूजी के पास कल फिर से पर्पल कैप आ जाएगा, ये तो कंफर्म है. बहुत क्लोज गेम राजस्थान और इसके बीच में 50-50 में मुझे भी लग रहा है. और इस मैच में प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूँगा. ओके, 50-50 लग रहा है तो. तो एक और कंट्रोवर्सी हुई 11 बजे के करीब सुबह में, जो आपको नीचे कमेंट में भी दिख रहा है. और मतलब सीएसके से हम उम्मीद नहीं करते, इस ईयर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है. तो वैशाली, जब आपके पास आया ये न्यूज़ कि उन्होंने पहले ट्वीट किया, फिर वो डिलीट कर दिया, तो मतलब क्या आपका रिएक्शन था उस समय, और क्या आपको क्या लगता है, क्या ये रीज़न हो सकता है इस चीज़ का? देखिए, मुझे पहला रिएक्शन तो मुझे ये लगा कि जो इंडिया में भी राइडो ने पहले ऐसे ही किया था कि ही इज गोना रिटायर, और फिर से उन्होंने रिटायरमेंट. तो मुझे लगा ये 2.0 वर्जन हो गया है उसका, सेम कि पहले भी किया. क्योंकि आजकल अगर राइडो रिटायरमेंट अनाउंस करते तो उसमें विश्वास नहीं होता कि शायद वापस आ जाएंगे. पहले भी उन्होंने कर रखा है. और उसके बाद जो अभी सीएसके के बीच में चल रहा है, नहीं समझ आ रहा कि उनके सीईओ को बार बार आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है. जैसे अभी जडेजा की पिछले कुछ दिनों से बात हुई थी कि वो रूल आउट हो गए, और फिर सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ चल रही थी कि शायद नेक्स्ट ईयर से जडेजा टीम में भी ना हो, और ऑल दैट. तो उनके सीईओ ने आके क्लैरिफाई किया. सिमिलरली आज फिर से वही हुआ कि सीईओ ने आके क्लैरिफाई किया कि नहीं नहीं, राइडू हमारे सिस्टम में रहेंगे. तो अगर आप इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करते हो, तो आई फील कि जो डिस्कशन बाद में आके वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो उनको पहले ही कर लेना चाहिए. जो भी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर, बिकॉज इससे ना यू लूज ट्रस्ट. अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज भी आएगी तो यू फील लाइक कि हाँ, ये तो शायद बाद में आके दे कैन चेंज दिस. सो द ट्रस्ट, द फेथ इन सच बिग फ्रेंचाइजी अ फैन हैज, दे लूज इट. और अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर इट विल गोना इम्पैक्ट यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो ये जो भी हो रहा है, लाइक इट इज नॉट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट, फॉर द टीम लाइक सीएसके, और स्पेशली इतने बड़े बड़े प्लेयर्स से. तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, नो, ही हैजंट रिटायर्ड फ्रॉम आईपीएल. आई थिंक he'll gonna play next year also. अगर ऐसा होता तो वो ट्वीट डिलीट नहीं होती. that tweet would have still और been there on the और social मेरे को media. सर ये भी मैम यही रीज़न जानना है, क्योंकि आप अगर किसी को मेगा ऑक्शन में आप लेते हो, तो आप फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट करते हो. तो 2 से 3 साल तो उनको खिलवाने के लिए आप इतना 6 सीआर में शायद उनको लिया गया. तो सर आपको जब पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था ये बात? Yeah, first of all, तो हम surprised नहीं थे, because I did not think that means 3 साल के लिए Ambati Rayudu easy actually a good investment. I was not very sure. So probably CSK के अंदर में there might be a lot of upheaval that is going on. There could be a wholesale changes in the next year. That is also possible, because there are too many players who are above 35 years. So there is a huge chance that the entire thing can means पूरा offload करके नया से टीम बनाए, जैसे दिल्ली एक बार किया था. So there is a chance for that. वहाँ से बातचीत करके उन्होंने डाल दिया. But this is very unlike from a team which Mahendra Singh Dhoni is leading. So it's the first time this is happening, but probably टीम का परफॉर्मेंस के साथ ये सब पॉलिटिक्स घुस जाता है, बिकॉज इवन मुंबई इंडियंस का भी कुछ एक दो घटना घटा है. और टाइमल मिल्स का भी एक तो ट्वीट लेके फिर इंफॉर्मेशन लीक हुआ था. सो आई गेस इट इज मींस रिलेटेड टू परफॉर्मेंस. इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर 2009 जब केकेआर में भी एक तो हुआ था, फेक आईपीएल प्लेयर का एक तो ब्लॉग आया हुआ था. तो केकेआर वाज डूइंग वेरी बैड एंड ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन. So it's related to performance. जब performance नहीं होता है, management थोड़ा चाप देता है, and then people reacts. And nothing to be taken seriously. I think Ambati Rayudu is still playing well. So कल का मेरा, I was just making the team for Dream 11 team for tomorrow,
And I have made Raidu my captain because I think he's going to answer tomorrow. ओहो, तो ये मैं रिकॉर्ड कर लूंगा सर, 25 मिनट पे आपने ये बोला है। होपफुली कल आपकी बात वो सत्य हो। और एक और आज जब 11 बजे ये चीज वायरल हुआ तो एक 4 बजे एक और न्यूज आता है पीटीआई की तरफ से मैच फिक्सिंग को लेकर। 2019 में कोई कुछ मैच फिक्सिंग किए गए थे, जो हमारे एक्स चेयरमैन उन्होंने कुछ ट्वीट भी किया था 2019 में, वो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मतलब इतने बड़े आप क्रिकेट को आप लीक करवा चुके हो, बट आपको पता है कि पावर प्ले में प्लेयर 2 बाहर रहते हैं, तो वो कोई भी वो चौका मार सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है वो ये मतलब मैच फिक्सिंग को लेकर, क्योंकि हमने ये आईपीएल में पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं, हमें 2013 में देखा है, बट सीबीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी तक तो कनेक्शन पाकिस्तान से ही आ रहा है। वैशाली, आपको कुछ कहना है इस बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो ट्रस्ट अपनी टीम्स पे रखते हैं, अपने प्लेयर्स पे रखिए, कीप हैविंग दोस ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट इज समथिंग जो अगर एक बार टूटा तो फिर वो कभी नहीं वापस आएगा। ये सब जो है दिस थिंग्स विल टेक केयर ऑफ बाय देमसेल्फ। अगर आई है तो क्लियर भी होगी, वापस भी आएगी। ना हम सीबीआई है, ना हम इन्वेस्टिगेटर है, ना हम कुछ है। तो वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दिस। वी शुड एंजॉय आवर गेम एंड वी शुड हैव फेथ इन आवर प्लेयर्स कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई डोंट वांट टू से इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट इट, एग्जैक्टली honestly. मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट मैं भी यही कहूंगा कि अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है कि क्या सत्य है क्या गलत है। तो चलो इस बारे में। तो सौरभ सर, हमारी टीम कल ट्रॉफी भी जीत सकती है थॉमस कप का। काफी नर्व भी होगा कल, बटरफ्लाईज भी आएंगी क्योंकि फर्स्ट फाइनल खेल रहे हैं हम। तो सौरभ सर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हम पहली बार पहुंच रहे हैं फाइनल में 73 ईयर के बाद बैडमिंटन में, जो कि 11:30 बजे से स्टार्ट होगा। मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, आप कहाँ पर देख सकते हो, किधर देख सकते हो, क्योंकि कल तो ट्वीट्स क्रिकेट के अलावा भी बैडमिंटन पर आने वाले हैं हमारे टाइमलाइंस पे। तो सौरभ सर, आपको क्या लगता है कल का मुकाबला क्या हो सकता है इंडिया और देखिए, इंडोनेशिया? सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडिया ने क्वार्टर फाइनल जीता, आई थिंक एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया जो आर्टिकल लिखा वहां पे लिखा था कि इंडिया इज एश्योर्ड ऑफ अ ब्रॉन्ज मेडल। नाउ ये जो मेंटालिटी है ना कि जैसे थर्ड होके भी हम खुश हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगा था। मीन्स आई डिड नॉट फील नाइस अबाउट इट। वी शुड से दैट वी हैव रीच्ड द सेमीफाइनल्स। एश्योर्ड ऑफ ब्रॉन्ज मेडल इज एक्चुअली अ नेगेटिव मेंटालिटी। उसके बाद जब हम लोग सेमीफाइनल जीते, अगेन आई सॉ एनडीटीवी राइटिंग द सेम थिंग, इंडिया इज नाउ एश्योर्ड ऑफ अ सिल्वर मेडल। सो वो कॉन्फिडेंस नहीं लिखता है इवन विद आवर स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स। सो इसीलिए जब विजय सर ने आज ट्वीट किया, हमको बहुत अच्छा लगा कि इट इज डिफिकल्ट बट वी कैन स्टिल डू इट। सो आई थिंक वी कैन डू इट because it's a game of momentum. If we can beat Malaysia and Denmark, I think we can beat Indonesia also. होपफुली कल हम जीत जाएं और सेलिब्रेट भी करें क्रिकेट के साथ कल बैडमिंटन का भी। वैशाली, क्या कहोगे कल के मैच पे आप? बिल्कुल जी, देखिए स्टेट्स वगैरह वो सब पास के रिकॉर्ड हो जाते हैं। उस दिन पर जो अच्छा परफॉर्म करता है वो मैटर करता है। वो भाई कोई भी टीम हो, हम केपेबल है परफॉर्म करने के लिए, तो किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। तो जो भी इंडोनेशिया सामने, वो माना कि उन्होंने बहुत सारे वो जीते हैं, लेकिन आई फील इंडिया कैन स्टिल डू इट। अगर वो वहां तक पहुंचे हैं तो वो आगे वो भी पहुंच सकते हैं। तो वी शुड जस्ट फुली सपोर्ट इट और एंजॉय इट। जहाँ जो भी हमने अभी तक जितना हासिल किया है उसको हम हमारे एथलीट को सपोर्ट करें, एंजॉय करें, एंड आई थिंक वी विल विन इट। वो पूरी कल हमारे पास एक ट्रॉफी भी रहेगा, और रहेगा, मेरे को लग रहा है, कॉन्फिडेंस है। होपफुली कल फिर से वॉच ऑन करेंगे, क्योंकि मैं एक बात बता देता हूँ, और जो भी स्पोर्ट्स विद ब्रोज हमारा बड़ा है ना, तो क्रिकेट से ज्यादा अदर स्पोर्ट्स के कारण बड़ा है। वो चाहे कबड्डी था, वो फुटबॉल था, या फिर बैडमिंटन है। कल हमने जो वॉच ऑन किया उसमें 500 से प्लस व्यूज आ गए अचानक से। मतलब हमने लक्ष्य सेन का मैच वॉच ऑन किया, बट वो हार गए। तो हमने सोचा कि अब नहीं, अब लकी चाम हमारा अनलकी हो रहा है, क्योंकि क्रिकेट में भी जब हम वॉच ऑन जाते हैं, मुझे याद आता है वो दीपक चहर इतना बेचारा मेहनत से रन मार रहा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और उसके बाद जैसे वॉच लॉन्ग स्टार्ट किया उसका विकेट गिर गया। इसलिए अब ये वर्ल्ड कप में भी हमने ये वॉच लॉन्ग काम किया था, बट अंडर 19 में ये वर्क कर गया था। होपफुली कल की वो मैच जीतो। तो थैंक यू सौरभ सर फॉर कमिंग। सर, सौरभ Yeah. सर, कुछ कहना चाहोगे? काफी दिनों बाद आए हो आज हमारे चैनल पे आप। नहीं नहीं, बढ़िया लग रहा है इतने दिनों के बाद आए, बिकॉज आईपीएल के टाइम, बिकॉज नाउ द कोविड थिंग इज गॉन, सो टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है बिकॉज आई एम कमिंग बैक लेट फ्रॉम ऑफिस, बट अदरवाइज इट्स गुड गोइंग। आई कीप फॉलोइंग योर ट्वीट्स, you're doing great, so keep up with the passion. So
congratulations on all the activities that you do regarding sports. And it's always a pleasure to come here and speak with you guys. Thank you. थैंक यू सर। बस लास्ट क्वेश्चन सर, क्या आपके टॉप 2 फाइनल प्रेडिक्शन क्या होगी? फाइनल की टीम कौन सी होने वाली है आपकी? No, it should be Lucknow versus Rajasthan Royals. That is what I felt. Now let's see tomorrow what it happens. I actually felt it should be Lucknow versus Rajasthan Royals. And somehow I felt that Gujarat Titans will falter. So let's see. वैशाली, आप कुछ चेंज करना चाहोगे 4 में, नंबर 4 में? नहीं, अभी नहीं, कल के मैच की बात करूंगी। अभी तो व्हाटएवर 5 टॉप 5 आई हैव गिवन, आई स्टिक टू इट, जो भी मैंने टॉप 5 दिए। ओके। ईशान, आप भी अगर अपना टॉप 4 बता सकते हो तो बता दो, वो आपने बताया नहीं है अभी तक। ऐसे तो गुजरात को आप छोड़ दो, टॉप 3 बता दो अब। लखनऊ और अच्छा गुजरात को छोड़ दूं मैं। ठीक है, बताओ बताओ, जो भी बताना बताओ 4। लखनऊ होगी, गुजरात होगी मेरी, और राजस्थान, और एक और का डाउट लग रहा है अभी कौन सी मे बी आरसीबी और केकेआर। आरसीबी और केकेआर में से होगा कुछ टक्कर। केकेआर तो भी काफी लंबा जर्नी तय करना है, बट हो सकता है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू वैशाली, सक्षम भाई आप भी आ गए, ईशान थैंक यू। जितने लोग भी देखे, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का घंटा बजा लो। थैंक यू। Thank थैंक you. यू जय हिंद, जय एवरीवन, थैंक भारत। यू फॉर वाचिंग। Yeah. Good night. गुड नाइट सर।